Aviral, welcome to this podcast and welcome to this channel. How are you doing there? फाइन ब्रदर, आप बताइए। Yes, I am very excited for this podcast. So, tell us a little bit about your journey, that how it will start and what is your experience for you. My name is Aviral and I started my freelancing journey before the 2 years. Gradually, I learned about the social media marketing. When I completed my +2, so then I switched to my animation diploma, and side by side I am doing my graduation also. At starting, I never get the results. All the things are not easy. I go to the clients and the client just saying no. So many things are there. Starting 6 months, I worked with the photographer. I learned about the skills, how the editing works and all, and that's my starting journey. I switched to another job, and that is motion graphics. I learned a lot of things. So then I switched to coaching institute. I work at night also, working day and night and learning a lot of things. इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं. And tell us a little bit about that. What type of services you are providing to your client? Okay, so I am providing the graphic designing, video editing, 2D animation, content, social media handling, content creation, posting. A lot of things are there. काफ़ी सारे ब्रांड्स को क्या रहता है कि उनको मार्केटिंग रिसर्च भी चाहिए एंड ऑल इनसाइट्स, उनको अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्डअप करना है. जो भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट रहते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग भी है, आर्किटेक्चरल वर्क भी है. वी आर वर्किंग एज अ टीम. You are doing the 3D animation. So basically, I am curious about this animation part. So Okay. like how a beginner can start this animation, that how they are learning this animation. Any suggestion for you? एट स्टार्टिंग अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कुछ ऑफलाइन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आप उसको स्टार्टिंग में आप उसको लर्न कर सकते हैं. सो मैं तो आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यूडेमी हो गया, ठीक है, स्किल शेयर हो गया, इस टाइप में काफ़ी चीप प्राइस में हम सीख सकते हैं. नो डाउट ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, ठीक है. मैं भी इसको बोलता हूँ कि एज अ कम्युनिटी बेस्ड अगर आपको क्लाइंट चाहिए ना, आप उसमें जाओ, लेकिन आप टोटली उसके ऊपर डिपेंड मत रहो. क्योंकि जो चीज़ आपको, अगर आप मार्केट के अंदर वर्क करो, अगर आपने 500 रुपीज़ में अपना एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक कोर्स स्टार्ट कर लिया, बट इन फ्यूचर जाके आपको क्या रहेगा, अगर आपको हैंड होल्ड सपोर्ट नहीं मिल रही है, आप वहीं पे लैग करोगे. सबसे बड़ी बात ये होती है. सो मेन इशू यही रहता है. Tell us a little bit about story, that how you get your first client and what the services you are providing them. I start post the content on the social media on my public profile. So from that content, I get the local clients. I get the clients through my local businesses. Just like in my connection, so many people want posters. So many people want videos, logo, animation. If I'm talking about on that time, I share my work on all the platforms. I shared a story. I want a logo animation work. So this is the thing, when you post on a social media on a regular basis, so you will get the results. At starting, I get the local client. So then I took a paid mentorship. So there I find a lot of methods. So then I start posting my content in the groups. So then I get the traction from the market. So a lot of the queries, I post my content, I post all the things whatever I am learning. So I totally shared in their groups. A lot of businesses groups are there. We must have to be active, and we get more business from the Facebook groups. Currently, how you get clients, that and which medium is what best for you? मैंने आपको सारे मेथड ही बता दिए कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा है. मैंने कंटेंट क्रिएशन का जो वर्क था वो वर्क कर रहा है, कोलैबोरेशन वर्क कर रहा है, कनेक्शंस वर्क कर रहे हैं, व्हाट्सएप लिस्ट बिल्ड कर रहे हो, अगर आप अलग अलग बिजनेसेस लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो. इवन कि अभी आपने बताया कि अभी आप वीडियो एडिटिंग लर्न कर रहे हैं. सो आपको क्या करना है कि आपको ग्रेजुअली अलग अलग डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनर, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है. अगर आप इस तरीके से अपनी व्हाट्सएप लिस्ट बिल्ड कर रहे हो, आप अपना कंटेंट रेगुलरली व्हाट्सएप स्टोरीज पे डाल रहे हो, सो उस तरीके से अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली बेसिस पे करते रहोगे, सो आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं. Network is the actually best. हाँ जी, नेटवर्किंग इज ऑलवेज हेल्पफुल. What is your point, like to see scope on the freelancing and digital business agency and the video editing and the 3D animation on the high demand currently or in the future? Okay, if we are talking about in future, the more people coming on the internet, the more they want
content creation, that they more want more attention. So for a video editor it's a big opportunity. And if we are talking about agency part, the agency will also grow if the agency have team factors we must have to be focusing. Number one, you must have having a skill. So second thing, आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आप किस इंडस्ट्री पे टारगेट कर रहे हैं। जब तक आप सब इंडस्ट्री में भागोगे तो आपकी पोजीशनिंग मार्केट में नहीं बनेगी। आपको क्या करना है कि इन डेप्थ एक ही इंडस्ट्री के अंदर रह के आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। जब आपने वो चीज़ हासिल कर ली, सो देन आपको क्या करना है कि आपको अपना मंथली टारगेट पता होना चाहिए कि आपको 1 मंथ के अंदर क्या रिजल्ट अचीव करना है। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, नेक्स्ट उसको वीकली डिवाइड कर सकते हो अपने मंथली गोल्स को। फिर आपके पास नोट डाउन होना चाहिए कि आपके पास कौन से वेज आप क्लाइंट को रीच आउट करोगे, आपको कितने नंबर तक रीच आउट करना है। ठीक है, कितने नंबर की कन्वर्जन रेशियो रहेगी, आपको वो चीज़ भी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अपनी टीम भी हायर करनी है, आपके बिजनेस के अंदर कौन से सिस्टम एंड प्रोसेस भी होने चाहिए, आपको उस चीज़ पे भी फोकसिंग करना चाहिए। एंड आप उसको ग्रेजुअली स्केलिंग पार्ट पे कैसे लेके जाओगे। कोई ये चीज़ बोल दो कि सारे फ्रीलांसर अपनी एजेंसी तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको ना स्केलिंग लेवल नहीं आ पाता। स्केलिंग लेवल इन द सेंस कि आपके पास एट स्टार्टिंग एक सर्विसेज है, ठीक है, आप उसको सेम क्लाइंट को नेक्स्ट लेवल सर्विसेज कैसे अपसेल कैसे कर सकते हो। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपसेल कर रहे हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरका का इंडियन ब्रांड ही है, उन्होंने स्टार्टिंग मिल्क से की थी, देन बटर पे, देन खीर पे। सो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपसेल कर रहे हैं। सो ये है कि आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ही अपसेल करोगे ना, सो उस चीज़ से आपको ग्रेजुअली प्रॉफिट आपको उसी चीज़ से बनेगा। Sure. What works for you? That cold email, cold DM, or cold call? I only do content creation, I only do collaboration, I only trust in the referral base. So these three things always working. The content creation, the collaboration method, I already tell you that how you can do collaboration एज अ वीडियो एडिटर। आपको ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ कनेक्ट होना है, आपको वेबसाइट डिज़ाइनर के साथ। आप ये देखो कि आपकी सर्विसेज किन किन लोगों को चाहिए। आप एनिमेशन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, हर फील्ड में हर लोग नहीं जा सकता। एज अ वीडियो एडिटर मैं हर फील्ड में भी नहीं जा सकता, मुझे 3D एनिमेटर भी चाहिए, इवन कि मुझे 3D पार्ट भी आता है। बट इन फ्यूचर जाके सारे काम मैं तो नहीं कर सकता, मुझे टीम तो चाहिए, मुझे टास्क तो डेलीगेट करने पड़ेंगे ना। तो रिजल्ट्स तभी आएंगे, आपकी इंडस्ट्री, आपकी जो भी एजेंसी है वो तभी ग्रो करेगी जब आपके पास बैकएंड के ऊपर टीम होगी। आपको सबसे पहले अपनी टीम पे फोकस करना है। ओके, रेफरल सिस्टम, व्हाट्सएप लिस्ट वाला मेथड भी मैंने आपको बताया। अगर आप उनके साथ काफ़ी सारे बिजनेस ओनर के साथ आप उनके साथ कनेक्ट होते हो, आपको वहाँ से रेगुलरली, चाहे इंस्टा पे हो रहे हो, फेसबुक पे हो रहे हो, प्लेटफॉर्म कोई भी फिक्स नहीं है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। सो ये है कि आपको स्टोरी बेसिस के ऊपर अगर आप रेगुलरली, आपकी अटेंशन जा रही है, आपकी स्टोरीज के ऊपर आपका नेम मेंशन है, ठीक है, सो उस चीज़ से आपको रेफरल मिलेगा। क्योंकि किसी भी क्लाइंट को पता रहता है कि किसी भी बिजनेस ओनर को कि ये कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जब उन्हें चाहिए होगी या तो हमें रेफरेंस देंगे, या फिर उनको काम करवाना होगा तो या फिर हमें डायरेक्टली मैसेज कर देंगे। हाँ जी। Awesome, bro. And thanks, bro, for joining on my podcast. It's pleasure to have you here. Thank Have you, a good thank day. you.